In interference experiment, the interfering waves have amplitudes in the ratio 3 is to 2. Have amplitudes in the ratio 3 is to 2. Find the ratio of amplitude and intensities. Find the ratio of amplitude and intensities between maxima and minima. Find the ratio of amplitude and intensities at maxima and minima. There is a very basic question. अगर मेरे पास दो इंटरफेयरिंग बीम्स हैं, एक का एम्पलीट्यूड A1 है, एक का A2 है, तो मैक्सिमा पे एम्पलीट्यूड विल बी A1 plus A2. मिनिमा पे A1 माइनस A2. तो हमें 3:2 की रेशो दी है, तो मैक्सिमम टू मिनिमम एम्पलीट्यूड की रेशो क्या हो जाएगी? 5:1, because 3x plus 2x over 3x minus 2x, because रेशो दी है ना 3:2. तो अगर मैक्सिमम टू मिनिमम एम्पलीट्यूड की रेशो है 5:1, तो मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी की रेशो क्या हो जाएगी? स्क्वायर. सो 25:1. सिंपल है क्वेश्चन. तो ये बोर्ड में 3 मार्क्स में आया था क्वेश्चन. हमें गिवन है लिट. A1 is 3x, A2 is 2x. So it's 3x plus 2x over 3x minus 2x. Because intensity is proportional to square of amplitude. It's 25:1. Simple है ये तो सबको. Next to write. Two sources, S1 and S2, emitting light of wavelength 600 nanometer. सर 2 सोर्स S1 एंड S2 की बात क्या बोला था? Emitting light of wavelength 600 nanometer are placed 10 raised to power minus 2 centimeter apart. A detector can be moved on the line S1P, which is perpendicular to S1, S2. A detector can be moved on the line S1P, which is perpendicular to S1, S2. A part is, what would be the minimum and maximum path difference? What would be the minimum and maximum path difference as detector moves along S1P? Locate the position of farthest minima. Locate the position of farthest minima. The distance of separation क्या दिया है? क्या चीज? The distance of separation क्या दिया है? 10 raised to power minus 2 centimeter. हमारे को इन दोनों के बीच में डिस्टेंस गिवन है. A detector is moved along the line S1P, which is perpendicular to S1, S2. Means detector is moved along this line. And this line is perpendicular to S1, S2.
तो हमने बताना है फारदेस्ट मिनिमा किधर बनेगा और मैक्सिमम और मिनिमम पाथ डिफरेंस कितना हो सकता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम पाथ डिफरेंस। अगर मैं पूछूं मैक्सिमम पाथ डिफरेंस तो वो कितना होगा, 10 raised to minus 2 centimeter. कितना 10 raised to minus 2 सेपरेशन हो। जो सेपरेशन है, क्यों और वो किस पॉइंट पे, S1 S1 पे जो पाथ डिफरेंस होगा दैट इज बिकॉज S1 पे अगर मैंने पॉइंट P को S1 पे ले लिया तो S2 से P तक डिस्टेंस ट्रेवल तो हो गया 10 to the power -2 और S1 से जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो 0 है, तो मैक्सिमम पाथ डिफरेंस इज 10 to the power -2, मिनिमम इज ऑलवेज 0 बिकॉज अगर मैं इसको इन्फिनिटी पे ले गया तो मैं इस डिस्टेंस को निग्लेक्ट कर सकता हूं, तो उस केस में पाथ डिफरेंस 0 आ जाएगा। Because if point P lies infinite distance away, then you can say that S2P minus S1P will be 0. A maximum path difference होगा when point P lies here. एक तो हमने ये बताना है कि S2P minus S1P की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम और मिनिमम। दूसरा farthest मिनिमा कहाँ पे होगा, farthest मिनिमा। So you can write the concept first. As we move along the line S1P, as the detector moves along the line S1P, as the detector moves along the line S1P, path difference goes on decreasing. Path difference goes on decreasing. The maximum path difference in interference experiment. The maximum path difference in interference experiment is the distance between the two sources. Maximum path difference between the two is the distance between the two sources. There is 10 raised to power -2 centimeter. There is 10 raised to power -2 centimeter. And the minimum path difference is 0. And the minimum path difference is 0. When point P is infinite distance away on the line S1P. When point P is infinite distance away on the line S1P. D part is for farthest minima. For farthest minima, path difference between the waves reaching point P. Path difference between the waves reaching point P from S1 and S2 should be such that सर फ्रॉम पॉइंट पी के बाद क्या बोला था? farthest minima path difference between the waves reaching point P from S1 and S2 is S2P minus S1P is equal to, क्या लूं इसकी वैल्यू, S2P minus S1P should be equal to minima of interference pattern. Condition क्या थी, even multiple of lambda by 2, odd multiple of lambda by 2, odd multiple. odd multiple of lambda by 2. Odd multiple of lambda by 2 का मतलब क्या हुआ, lambda by 2, 3 lambda by 2, 5 lambda by 2, 7 lambda by 2. तो अगर मेरे को फारदेस्ट बताना है, दूर जाने से पाथ डिफरेंस कम हो रहा है, तो मैं कितना लूं S2P minus S1P को, इट शुड बी मिनिमम पाथ डिफरेंस कितना हो सकता है फारदेस्ट के लिए, इट शुड बी लैम्डा बाय 2 मिनिमम वैल्यू यही है फारदेस्ट के लिए, इट शुड बी लैम्डा बाय 2
तो इसकी वैल्यू निकालो, फिर वो किस डिस्टेंस पे लाई करेगा। मैं इसको मान लेता हूँ ये डिस्टेंस अगर d है, तो दिस S2P becomes and this is d, तो S2P minus S1P कितना हो गया? क्लियर है ये स्टेप? ठीक है, ये इसको फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करें? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, चलेगा ये स्टेप? इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या हो जाएगी? हमने d बताना है, d इज इक्वल्स टू d स्क्वायर बाय लैम्डा। सिक्स 600 नैनोमीटर। देखो क्या वैल्यू आती है। वन बाय 60। यही आ रही है वैल्यू। देखो क्लियर है सबको? सेक लैम्डा बाय 2 दोबारा समझा दो। कौन सा? जैसे लैम्डा मैक्सिमा, मैक्सिमा मिनिमा के लिए कंडीशन क्या होती है? मिनिमा इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। यस सर। फारदेस्ट मिनिमा, फारदेस्ट मिनिमा हम दूर जा रहे हैं तो पाथ डिफरेंस कम हो सकता है। तो सबसे कम कितना हो सकता है पाथ डिफरेंस? जैसे जैसे दूर जा रहे हैं पाथ डिफरेंस कम होता जा रहा है, तो सबसे दूर कितना होगा? लैम्डा बाय 2, उससे कम तो हो ही नहीं सकता मिनिमा के लिए। इधर ओके अगर लैम्डा बाय 2 है, इधर 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2 ऐसे ही होंगे ना। अगर मैं आपसे पूछ लेता मिनिमा होंगे कितने, तो वो कैसे पता चलता है कि इस पे कितने मिनिमा बनेंगे? मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस कितना है? 10 10 रेस्ट to 10 रेज़ टू पावर माइनस। उसका लैम्डा के साथ क्या रिलेशन बन रहा है? उसका लैम्डा के साथ क्या रिलेशन बन रहा है? बिकॉज ऐसा तो नहीं है ना इनफाइनाइट बन जाएंगे यहाँ पे। कितने मैक्सिमा बन या मिनिमा बन सकते हैं ये बताओ? कितने मैक्सिमा या मिनिमा? बिकॉज इसमें तो मैंने पूछा था फारदेस्ट मिनिमा, मैं आपसे फारदेस्ट मैक्सिमा पूछ सकता था, नियरेस्ट मिनिमा पूछ सकता था। अगर मैं इसमें नियरेस्ट मिनिमा पूछता तो कैसे करते कि नियरेस्ट मिनिमा कहाँ बनेगा? सर इसकी वेवलेंथ कितनी थी? 600 नैनोमीटर। सर इसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम से आ जाएंगे 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 600 नैनोमीटर।
डी बाय लैम्डा से क्या पता चलेगा? सर डी बाई लैम्डा से मतलब पता चलेगा कि सर कितने एन लैम्डा पॉसिबल है। कि कितने मैक्सिमम्स बन सकते हैं, सो वहां से निकालना होगा। हाँ जी सर। उसके जैसा क्वेश्चन भी करते हैं अभी एक, बट फारदेस्ट के लिए अगर मिनिमा पूछा था तो लैम्डा बाय 2, मैक्सिमा पूछा होता तो फारदेस्ट मैक्सिमा 0 लेते हैं। इनफाइनाइट, बिकॉज फारदेस्ट मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस होना चाहिए 0। यस सर। 0 पे भी तो मैक्सिमा ही बनना है ना। फारदेस्ट मैक्सिमा तो इन्फिनिटी पे बनेगा, बट अगर फारदेस्ट से एक कम वाला बताना होता तो पार्ट डिफरेंस लेते लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, बिकॉज एक इन्फिनिटी पे मैक्सिमा, फिर लैम्डा पे मैक्सिमा, फिर 2 लैम्डा पे मैक्सिमा, फिर 3 लैम्डा पे मैक्सिमा, और इनफाइनाइट नहीं बनेंगे बिकॉज एन लैम्डा की वैल्यू कभी भी डी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सर हाँ जी, सर इसके अंदर डी ओवर लैम्डा क्यों करेंगे? लैम्डा बाय 2 नहीं मैंने करेंगे? क्या बोला लास्ट में, मेरा सुना मैंने अभी जो बोला कि अपना क्वेश्चन दिमाग में था, मैंने अभी हाँ लास्ट सर। में एक सेंटेंस बोला था, क्या हाँ बोला जी अभी? सर, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 डी की लैम्डा। वैल्यू एन लैम्डा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए कभी भी, हाँ जी सर। तो फिर वही तो है, डी बाय लैम्डा इज एन। नेक्स्ट लिखो, two coherent sources S1 and S2, two coherent sources S1 and S2 vibrating in phase emit light of wavelength lambda as shown. As shown, find the position of farthest and nearest minima. Find the position of farthest and nearest minima. सेम क्वेश्चन ही बट थोड़ा सा चेंज कर दिया, S1 S2 के बीच में डिस्टेंस दे दिया, इट्स ये क्वेश्चन में गिवन है। इस लाइन पे फारदेस्ट और नियरेस्ट मिनिमा, फारदेस्ट कहां पे बनेगा? वेयर S2p माइनस S1p इज लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय लैम्डा बाय 2, और नियरेस्ट नियरेस्ट के लिए कितना लें? मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस कितना हो सकता है? 2 लैम्डा। लैम्डा 2 लैम्डा। 2 लैम्डा, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना है इस पॉइंट पे? 2 लैम्डा 2 लैम्डा। 2 लैम्डा। इन्फिनिटी पे कितना है? 0। 0। तो अब इसके बीच में कितने मैक्सिमा कितने मिनिमा बनेंगे? एक यहाँ पे मिनिमा बनेगा जहां पे डेल्टा एक्स की वैल्यू 3 लैम्डा बाय 2 होगी, फिर यहाँ पे मैक्सिमा बनेगा जहां पे डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा होगी, इधर बनेगा जहां पे डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा बाय 2 होगी, और एक फिर इन्फिनिटी पे। यही केस है, बस इससे ज्यादा तो बन नहीं सकते मैक्सिमा मिनिमा। यस तो नियरेस्ट मिनिमा किधर बन रहा है? 3 लैम्डा बाय 2 पे। P1 पे, और फारदेस्ट मिनिमा P2 पे। 2 पे। नियरेस्ट मैक्सिमा किधर बन रहा है? 2 लैम्डा। 0 पे। डिस्टेंस तो 0 हो गया ना S2 से। यस। यस नियरेस्ट मैक्सिमा बन रहा है यहाँ पे, फारदेस्ट मैक्सिमा इन्फिनिटी पे। तो बिकॉज मैक्सिमा मिनिमा इस फॉर्म में आता है कि मैक्सिमा इधर बन रहा है और एक इन्फिनिटी पे बन रहा है, मिनिमा एक यहाँ बनेगा एक इधर बनेगा। अगर फर्स्ट मैक्सिमा पूछा होता है, इसको हम कह देते हैं दिस इज बेसिकली इनिशियल पॉइंट, तो एक यहाँ पे मैक्सिमा और बन जाएगा लैम्डा पे। सो सॉल्व कर दो इसको, मतलब आपको D1 की वैल्यू निकालनी है और D2 की निकालनी है। फाइंड दीज टू वैल्यूज फॉर नियरेस्ट मैक्सिमा, sorry minima, for nearest minima इसको सॉल्व करके D देखो,
for farthest max minima. Find the value of D1 and D2. Find the value of D1 and D2. क्या है आंसर? नहीं सर, आ गया मैक्सिमम सर, वो वही है, फार्देस्ट वाला ही है। सर मिनिमम कितना आ रहा था D1 की वैल्यू और D2 की वैल्यू? सर D1 की 7 lambda by 12. Similarly, D2 निकालोगे तो it will be 15 lambda by 4. So 7 lambda by 12 and 15 lambda by 4. सर हाँ जी, S2P D1 नहीं है? वो मतलब इन दोनों का डिफरेंस ही लेना ना, S1P माइनस S2P कर दो यहाँ पे। नेक्स्ट रेट सर इसको बायनोमियल से करने में भी सेम आंसर आएगा? बायनोमियल से फिर अप्रॉक्सीमेट आएगा। So you can write because बायनोमियल में हमेशा हायर ऑर्डर टर्म्स को नेग्लेक्ट किया होता है, मतलब अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट्स होते हैं। नेक्स्ट इज light from two coherent sources. Light from two coherent sources having intensity I1 and I2. Having intensity I1 and I2 reach a point on a screen
reach a point on a screen where path difference between the two waves is delta x. Path difference between the two waves is delta x. Find the resultant intensity. Find the resultant intensity. Resultant intensity बताओ कितनी होगी? दो waves दोनों की intensity दिया है I1 I2 reach any point on a screen such that path difference is delta x. क्या आपको ऐसे दिया है? Say S1 ये S2 ये screen. मैंने स्क्रीन पे कोई भी एक पॉइंट ले लिया P. एक वेव S1 से P तक गई, एक S2 से P तक गई. इसकी इंटेंसिटी दी है I2, इसकी I1. और हमें यह दिया है कि S2P माइनस S1P इज डेल्टा एक्स. यहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी? अगर ये इन दोनों का सेंटर है, मान लो ऐसे, ये d/2 और ये भी d/2, तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी होती? सेंटर पे मैक्सिमम सर इसमें एम्पलीट्यूड मैक्सिमम इंटेंसिटी मैक्सिमम I1 प्लस I2. हाँ जी सर. यहाँ पे इंटेंसिटी I1 प्लस I2 होनी थी. मैंने इस पॉइंट पे पूछी जहाँ पे पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स है. करो सॉल्व. So I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos of 2 pi by lambda into delta x. बिल्कुल ठीक. ठीक है. हमें पता है कि द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर मैं सिर्फ एम्पलीट्यूड की बात करूं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज phi denotes Phase difference. फेज डिफरेंस. इसमें पार्ट डिफरेंस गिवन है, फिर वहां से फेज डिफरेंस निकल जाएगा. इसे corresponding path differences. So we can say delta phi is also I proportional to a square. I1 plus I2 plus 2 under root I1 under root I2.
cos 2 pi by lambda delta x. इस फॉर्मूला को याद भी रख सकते हो वैसे भी, बिकॉज न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट यूज कर देना. Next, right. In the arrangement shown in figure, distance capital D is very large as compared to सर शोन फिगर की बात क्या बोल रहे थे? distance capital D is very large as compared to distance small d, which is separation between the slits, Find the minimum value of d, small d. Find the minimum value of small d so that there is dark fringe at point O. सर लास्ट टाइम रिपीट करना, फाइंड मिनिमम. Find the minimum value of small d so that there is dark fringe at point O. B part is, suppose d has this value. Suppose d has this value. Find the वो distance. डी से क्या बोला? Suppose Dark. d has this value. This value मतलब जो part A में calculate की. Suppose d has this value. Find the distance x at which next bright fringe is formed. Find the distance x at which
Next, bright fringe is formed. यहाँ में डायग्राम दिया है साथ में कि इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट है, you have two sources and this is how practically interference is done. मतलब ये सोर्स ऑफ लाइट है S, एक लाइट S से जा रही है सीधा O तक, तो दिस एक्ट्स एज वन स्लिट, दिस एक्ट्स एज सेकंड स्लिट। एक सीधा S से चलेगी O तक और एक S से S1 फिर S1 से O। तो हमें बताना है यहाँ पे अगर मिनिमा बन रहा है कि पॉइंट O पे हमें मिनिमम दिया है, तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ D? D is this separation. What is the minimum value of D so that minima is formed at O? फिर सेकेंड पार्ट में कहा D की यही वैल्यू यूज करो जो फर्स्ट पार्ट में निकाल ली इसकी। X एक पॉइंट का डिस्टेंस बताओ जहां पे फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा। कि अगर यहाँ मैक्सिमा बन रहा है स्क्रीन के ऊपर सेंटर से, तो X की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमा कितने डिस्टेंस पे बनेगा O पे अगर मिनिमा है तो। सो करो इसको सॉल्व, पहले खुद से ट्राई करो नहीं तो मैं बताता हूँ। तो SS2 कितना दिया? SS2 भी D है, S2O भी D है। ये डिस्टेंस और ये भी सेम, माइनस ये ट्वाइस ऑफ -2D। minimum value of D for minima at O. Path difference should be equals to lambda by 2 for minima. सर एक बार प्लीज थोड़ा सा ऊपर कर दो।
ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया. इसमें देखो किसी को नहीं आया समझ तो फर्स्ट पार्ट. सर लैम्डा बाय 2 बनना कहाँ पे वैसे बताइए. पाथ डिफरेंस होता है ना लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2 तो मिनिमम बताना है इसलिए लैम्डा बाय 2 कंडीशन है ना मैक्सिमा मिनिमा की. ये तो नेक्स्ट हमने बताना है मैक्सिमा किधर बनेगा. x की वैल्यू बतानी है तो मैंने ऐसे एक पॉइंट एज्यूम कर लिया x. एक रे इस पॉइंट से गई और यहां तक आई. दूसरी रे ये होगी. अगर मैं पाथ डिफरेंस की बात करूं फॉर वेव्स रीचिंग पॉइंट P, इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया SS2 प्लस S2P और इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया SS1 प्लस S1P. ये डिस्टेंस D है, ये X है. दिस वुड बी ये भी D है. ये डिस्टेंस D है, दिस इज. और ये डिस्टेंस कितना होगा ये दिस इज D माइनस X बिकॉज ये पूरा D है, दिस इज X. तो ये डिस्टेंस हो जाएगा दिस वुड बी. अच्छा अब दो केस हो सकते थे. ऐसे भी हो सकता था कि ये जो पॉइंट है ये इसके ऊपर लाई करे, मतलब मेरा डायग्राम ऐसे बने कि ये D है और पॉइंट ऑन द स्क्रीन यहाँ पे है. इस केस में डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज एक ये वेव इस केस में मैं अगर आपसे पाथ डिफरेंस पूछूं तो क्या आएगा. दिस इज D, दिस शुड बी similarly this is D square plus D square. X minus D का होल स्क्वायर. तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया इधर.
यही होगा। मैक्सिमा कब बनेगा? जब इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो? लैम्डा। लैम्डा। यहां से x निकालना है, स्मॉल d की वैल्यू ये यूज करनी है, एंड यू हैव टू फाइंड x। कैलकुलेशन लेंथी है, आपको मेथड समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। सर एक बार दोबारा समझा दो प्लीज। मिनिमा निकालना होता तो मैं पाथ डिफरेंस को लैम्डा बाय 2 लेता, नेक्स्ट मिनिमा निकालना होता तो 3 लैम्डा बाय 2। 3 लैम्डा। लैम्डा बाय 2। फर्स्ट मैक्सिमा निकालना है तो लैम्डा, सेकंड मैक्सिमा निकालना है तो 2 लैम्डा 3 लैम्डा, उस फॉर्म में आप कर सकते थे। लैम्डा नहीं, गिवन नहीं but- है तो पाथ डिफरेंस मतलब डिस्टेंस का डिफरेंस। इस यहां से वेव शुरू हुई, यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? तो d प्लस डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसने कितना किया? d स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और d स्क्वायर प्लस एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर, और दोनों का डिफरेंस ले लिया। दैट शुड बी इक्वल टू लैम्डा। जी तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना, इस पूरे को, इसको करके देख लेना, बेशक सॉल्विंग आपकी यही वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू d। अगर इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट x इज इक्वल्स टू d। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। सर इसमें मैक्सिमा में डेल्टा x 0 इसलिए नहीं ले सकते हो कि वो पॉसिबल नहीं है? बिकॉज जीरो तो हो नहीं सकता ना पार्ट डिफरेंस, आप ध्यान से देखो तो। यस सर, मेरे को भी लग रहा था कि पॉसिबल नहीं हाँ, है। तो फर्स्ट ही निकालेंगे हम, ओके। बिकॉज लैम्डा बाय 2 के बाद अगर ऊपर पूछ रहे हैं तो लैम्डा के 2 जीरो तो यहाँ नीचे आएगा कहीं, मतलब एज शोन इन फिगर कहा था ना, उन्होंने कहा था एज शोन इन फिगर x निकालो। अगर यहाँ पे पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 है, जीरो यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो जीरो लैम्डा बाय 2 लैम्डा 2 लैम्डा। सेंटर पे अगर लैम्डा बाय 2 आ गया तो फिर जीरो नीचे ही आना है हमेशा, ऊपर नहीं आएगा। ओके। तो नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके, कल यंग्स डबल स्लिट करेंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और फॉर्मूला ऑलमोस्ट यही रहेंगे, सिर्फ हम एक पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कि पाथ डिफरेंस क्या निकाला था यंग्स ने, एंड बाकी सब सेम रहेगा। मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन सेम रहेंगी, मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी की रेशो वो सब सेम रहना है। तो सिर्फ एक यंग्स डबल स्लिट जो एक प्रैक्टिकल मेथड है टू जनरेट कोहेरेंट सोर्सेस, तो उसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कि मैक्सिमा मिनिमा कितनी होगी, पाथ डिफरेंस फॉर एनी पॉइंट ऑन अ स्क्रीन कितना होगा, और फिर एक और फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं कि फर्स्ट और सेकंड मैक्सिमा के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, या फर्स्ट और सेकंड मिनिमा में डिस्टेंस कितना होगा, या जनरल भी आपको पूछ सकते हैं कई बार, वो बोलेंगे ऐसे थर्ड मैक्सिमा फिफ्थ मिनिमा में डिस्टेंस बताओ, तो उस तरह के न्यूमेरिकल्स के लिए कल थ्योरी करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। जो आपने पहला केस ड्रॉ किया था, जैसे उसे सॉल्व किया तो जैसे वैल्यू d इंटू 1 प्लस रूट 3 आ रही थी, क्या वैल्यू आ रही थी? स्मॉल d इंटू 1 प्लस रूट 3 x की वैल्यू। जैसे जो आपने पहला केस ड्रॉ किया था, आपने 2 केसेस ड्रॉ किए करके थे। देख लेना उससे क्या आता है, दोनों से करके देख सकते हो, और दोनों से अलग अलग आंसर आ सकता है, बट आपको लॉजिकली देखना पड़ेगा बाद में कि फर्स्ट मैक्सिमा जो है वो डी से कम पे बनेगा या डी से ज्यादा पे। तो नॉर्मली मतलब जब हम कल वाली थ्योरी पढ़ेंगे ना, तो यू विल रियलाइज कि वो डी से ज्यादा भी बनेगा, बिकॉज डी जनरली बहुत स्मॉल दिया होता है। ओके सर।